Here, we will, till now we were discussing the spur gear. Now we are going to start the helical gear. Helical gears are again important from the subject as well as practical point of view. A lot of application you will find for the helical gears. You see here in the picture, these are the helical gears which are shown. One is the driver and other is driven, or one is the gear and other is pinion. One other thing you can see here, that the teeth which are on the helical gear, either on the driver or on the driven, they are inclined with the axis. And this is the major difference between the spur gear and the helical gear. In the spur gear, the axis of the shaft as well as direction or the axis of the teeth both are parallel to each other. However, in case of the helical gear, axis of the teeth and axis of the shaft have some angle, which is shown here in the figure. So, in helical gears, teeth are inclined to the axis of the shaft in form of the helix. Two such gears may be used to connect two parallel shafts in place of the spur gear. The helix may be the right-handed on one gear and the left-handed on the other gear. एक गियर पे अगर हेलिक्स राइट हैंड हेलिक्स है तो दूसरे पे लेफ्ट हैंड होगा, अंडरस्टूड है, तभी उसका कॉम्बिनेशन बनेगा. In helical gear pair, the angle of helix is same for both pinion and gear. However, hand of helix is opposite to each other. In helical gear, the angle of helix is same for the both pinion and gear. However, the helix is opposite to each other. The teeth of helical gear with the parallel axis have a line contact. The result that helical gears are less noisy, smooth in operation as compared to the spur gear. These advantages are because of the fact that helical gears contact between the teeth does not take place suddenly along the whole contact line, but it starts from a point and then spreads over the entire face. As you can see here in this figure, contact will start from one portion and it will continuously going on the whole portion of the teeth. Here you can see the concept of double helical gear. So single helical gear, as such, no confusion should be there, that axis of shaft is there and then teeth are inclined to the axis of the shaft. This inclination is measured with some angle. That angle is known as the helix angle, helix angle. So which must be the same for the driver and driven. However, direction of helix must be the opposite to each other. So in one of them, the helix will be the left hand and other will be in the right hand. However, the helix angle will remain same in the driver and driven, but the direction of helix will be the different in the driver and driven.
Now here you can see concept of double helical gear. You can see that the gear, two gears are in such a way that half of the gear is having the left hand thread and half of the gear is having the right hand thread. During the operation, at least two pair of gear teeth are always in contact. This reduces the dynamic load at peripheral speed greater than 6 meters per second. It's always advisable to use the helical or the double helical gears. This is the concept of double helical gear. You can see here. And if you, these double helical gears are also sometime are in the form that they are fabricated or developed having double-sided helix. These type of the gears are known as the herringbone gear. These type of the gears are known as the herringbone gears. So you can see the figure of the herringbone gears. I think you will be knowing the advantages and disadvantages of the herringbone gear. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस जरा क्लास ले रहे थे हम बी की। जी जी, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। जी जी, फिर हम कल सुबह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, स्टाफ। So the terminologies which are important from the subject point of view. As we discussed the terminologies in the spur gear, similarly the terminologies are also here in helical gears. Helix angle. It is a constant angle made by the helix with the axis of rotation. Helix angle is the angle made by the helix with the axis of rotation.
And then there is a term axial pitch. It is the distance parallel to the axis between the similar faces of adjacent teeth. It is the same as the circular pitch and is therefore denoted by P. Axial pitch may also be defined as the circular pitch in the plane of rotation or the diametral pitch. So as in case of the spur gear, we were having the circular pitch. Similarly, here we have the axial pitch. Then the normal pitch Pn, another terminology. It is the distance between the similar faces of the adjacent teeth having a helix angle on the pitch cylinder normal to the teeth. It is denoted by Pn. The normal pitch Pn may also be defined as the circular pitch in the normal plane with which is a plane perpendicular to the teeth, and mathematically the normal pitch is written as Pn is equal to Pc cos phi. You can see here in the diagram. Similarly, for the module you can write it as Mn as M cos phi. So these are specifically with helical gears. This is normal pitch and normal module. Now coming to the force analysis. As we did in the force analysis in case of the spur gear, similarly the force analysis for the helical gear. So you refer this figure. In fact, if this was the situation, if you remember, in case of the when we discuss here, so you see here force will be acting, so tangential and radial components will be there. Again, the radial component is not an important component. The component which are important is the tangential component. However, one more component will come into the picture here. If you see the plan, you will find that axial component FB, axial component which will be going along the shaft. It will be going along the shaft. So this axial component is always responsible for axial thrust. Is always responsible for the axial thrust on the bearings, which is a drawback of the single helical gear. So with reference to this diagram, you may write these equations. Equation 1, 2, 3, 4, 5. And then with the help of these 5 equations, you may further develop these relations and you may get the equation number 9. Equation number 9, that tan phi n is equal to tan phi mu cos psi, where phi is the pressure angle measured along the plane rotation and phi n is the normal pressure angle measured plane normal to the teeth, of course helix angle psi.
helix angles I. So this relation 9 is important. With the help of the relation 9 further, if you remember, we developed this beam equation. We already have developed this beam equation. So you can further modify it here, the beam equation, using the normal component with the normal module, and of course the phase width. So if you take this analysis part here and put these values, simplify it, you will be again getting these values only to be modified, that mn, phi n and cos phi, and basic bending equation or basic Lewis equation will remain same. Only the parameters which are going to change, that p and mn, which you will be calculating at the same time, the values for the phase width, and this with the help of the relation 9 you will simplify it, and as per the different applications you will be using these equations. And final condition, of course, will remain same, that F beam must be greater than the maximum strength of the materials or safe design. So we will solve some problem also on the helical gear. By the time these are the some you need to go to analysis part of also of the helical gear. However, there some more gears are there. That is, for example, bevel gear. You're supposed to know what is bevel gear and what are its application. You need not to go to analysis of the bevel gear. Bevel gears are used to transmit the power between the two intersecting shafts. These gears are cut on the conical pitch surfaces. The two type of the bevel gears, the straight tooth bevel gear and the conical pitch bevel gear.
So right now I don't see here any helical gear problem. I will see some problem and we'll discuss here in the class. By the time some spur gear problems are yet to be discussed, we will start discussing the spur gear problem. But let me have the attendance first. Firstly, I will have the attendance, then the class will continue again. जिसकी अटेंडेंस बोली जाए वो अपना नाम जो है Yeah, please attend your calls. आमिर खान, सर अपनी वीडियो ऑन करिए. यस. अब्बास मेहंदी, अफजल खान, यस सर प्रेजेंट अकमल हुसैन, अकमल हुसैन, अंकित कुमार, यस सर अरमान, यस सर अतीकुर रहमान, यस सर ब्रिज मोहन, यस सर गजाला, Yes, sir. हारून, प्रेजेंट सर हिजबुल्ला, इजहार, यस सर कामरान, यस सर खुर्शीद, ललित, यस सर क्लास इसकी अटेंडेंस के बाद खत्म नहीं होगी, क्लास दोबारा से कंटिन्यू होगी. प्रॉब्लम क्लास के बाद प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू होगा. ठीक सर मजहर, यस सर आरिफ, यस सर दानिश, यस सर सरवर, तौकीर, उमर, यस सर सर तौफीक तौकीर. ठीक है. उमर, सर 22 यस सर ठीक है. ठीक है. तनवीर, सर तौफीक हो गया हो गया. तनवीर, आतिफ, यस सर 25 है सर 25 इमरान, इमरान, इंतजार, यस सर प्रेजेंट सर मोहम्मद इमरान कासिम. यस सर अपना नंबर आने से पहले आप वीडियो ऑन कर लिया कीजिए. शाहरुख, जमील, यस सर जमील सर मोहम्मद जमील जायद, यस सर नसीम, नजीम, यस सर नजीब आरिफ,
आरिफ Yes, sir. अंसारी, 35. Arif Ansari. फैजान, Yes, sir. फैजान, Salaam alaikum, sir. इस्लाम, काशिफ, काशिफ, सनाउल्लाह, शाह फहद, जहीरुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, Yes, sir. Present. आ रही आवाज? जी आवाज आ रही है, फरहान, महशर, Yes, sir. राशिद, Yes, sir. मोहम्मद राशिद. मुस्तफ़ा, जी सर. मुस्तफा. रहमान सबा, Present, sir. साबिर, प्रेजेंट सर। सलीम, Present, sir. शहजाद, शहनवाज, Yes, sir. शहजादा मुनज्जम, Yes, sir. शारिक, शुएब, Yes, sir. शुएब खान, जी सर. सलाम सर. इस्लाम, शुभम, प्रेजेंट सर. शुभम श्रीवास्तव, यस सर. पहली क्लास में आया आज आप? नहीं सर, स्टार्टिंग में मैंने ली थी, बीच में मैंने ड्रॉप किया था. हाँ, ज्यादातर क्लासेस आपकी सब एब्सेंट लगी हुई हैं, प्रेजेंट Yes, sir, हमें तो बीच दिख हमें तो प्रेजेंट कोई दिख नहीं रही है। बहरहाल आप बता रहे हैं तो कहीं होगी प्रेजेंट। नहीं सर, स्टार्टिंग की मैंने क्लासेस सारी ली हैं सर. हाँ, वो स्टार्टिंग की जब क्लासेस शुरू नहीं होंगी तब आपने ली होंगी क्लासेस। नहीं सर, ऐसा. सोनित, Yes, sir. सुहेल, Yes, sir. तौसीफ, Yes, sir. वसीम, वसीम सैफी, वसीम सैफी, योगेंद्र, Yes, sir. Yes, sir. Yusuf Jamil. यूसुफ जमील, जैद, Yes, sir. जियाउर रहमान, जियाउर रहमान, अफसार, Present, sir. सुफियान, सुफियान, सुफियान तुम्हारे पास कॉल वॉल आई थी कोई? क्या रहा फाइनली? सिलेक्शन हो गया? चलिए, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। जो है कर डाली, अच्छा है। फिर बात करेंगे बाद में आपसे इस बारे में। नबी, नबी, सचिन, यस सर, प्रेजेंट सचिन राघव। राम बाबू, Yes, sir. Present, sir. नतीक, नतीक, नरेश, Yes, sir. अब्दुल समद, प्रेजेंट सर। अमरजीत, Yes, sir. Present, sir. माधव, माधव नहीं है। अच्छा, ये रोल नंबर 8025, पता नहीं क्या नाम है 8025 का। वसीम 8068, शादाब, Yes, sir. वजाहत,
वसीम जफर, वसीम जफर, वसीम जफर नहीं है क्या यार? अभी तो इन्होंने कई कई मोबाइल एंट्री ले ली थी, अब गायब हो गए यहाँ से। सर उसका ज्वाइन नहीं हो रहा, वो कह रहा है उसको, वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए कह रहा था, क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है वो। सर अभी उसका नोटिफिकेशन आया कि यू है 37 काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा छूट गया था सर्वर, मेट्रो में था सर एक्चुअली। रोल नंबर 20 सर। सर मेरा 37 है काशिफ, मेरा भी छूट गया था उस टाइम, नेटवर्क की वजह से वॉइस नहीं हो पाई थी मेरी ऑन, इस वजह से सर। अच्छा, सर अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अ मिनट हम जरा। अटेंडेंस अभी क्लास के बाद फिर से ली जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद। तो जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे हो ये ना समझे क्लास खत्म हो गई है, क्लास अभी चल रही है। और अभी प्रॉब्लम का पोर्शन मैंने आपसे कहा था कि गियर की एक ही प्रॉब्लम कराई गई, एक ही दो प्रॉब्लम हुई है, अभी गियर की प्रॉब्लम थोड़े सस्ती जानी है। आप लोगों को एक काम ये करना है कि मशीन डिजाइन प्रैक्टिस की एक फाइल बनानी है। ललित, हमने फाइल के बारे में आप लोगों को शुरू में बताया था ना ललित? सर हेलो
हाँ ललित, आवाज नहीं आ रही जी थी। सर, हाँ सर, फाइल का तो ये दे रखे है ना सर, 2 आपने असाइनमेंट और पहले वो बोले थे कि न्यूमेरिकल जो करा रहे हैं वो करने हैं, ट्यूटोरियल वाली। हाँ हाँ, जो ट्यूटोरियल वाली जो प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, इसको एक फाइल में बना के आपको रखना है और बाद में इसकी सारी ज्वाइंट पीडीएफ सबमिट करनी होगी आपको। वो जितनी प्रॉब्लम बन जाएंगी, हमारे अंदाज से हर यूनिट में कम से कम 2-2 प्रॉब्लम तो कराई जा रही हैं, 2-3 प्रॉब्लम तो कुल लास्ट में जाके 10-15 प्रॉब्लम बन जाएंगी आपकी। तो इन प्रॉब्लम्स का ज्वाइंट पीडीएफ आपको एक जमा करना पड़ेगा। अभी आप पेपर के ऊपर सॉल्व करते रहिए। सर उसमें ये भी है जो सर आपने ट्यूटोरियल दिया है। ट्यूटोरियल तो असाइनमेंट है ना आपका, अलग है वो। जी सर। वो तो हमने होम असाइनमेंट दिया है ना आपको। यस सर, 2 असाइनमेंट है सर, 20 को जमा करना है। आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। थ्योरी के 50 मार्क्स आपके लगने हैं सेशनल के थ्रू, और प्रैक्टिकल के आपके 50 मार्क्स हैं। सर ये इसका डेट थोड़ा बढ़ा देते सर, कई लड़के कह रहे थे। सर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन है सर, प्रेजेंटेशन बनाना है 20 तक सर, उसको भी देना है। तो उसकी डेट तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी यार, ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी। सर मुश्किल की बात नहीं है सर, एक्चुअली सर प्रेजेंटेशन की वजह से है थोड़ी। अभी सेशनल हुआ है तो अब इसके बाद प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए काम करना है, तो वही सर दोनों डेट क्लैश कर उसी टाइम। चलिए देखते हैं हम उसकी डेट जो है, अगर कुछ बढ़ा देते हैं। क्या डेट कर दें उसकी? सर नेक्स्ट मंडे कर दीजिए, 27 सर। यस सर, पॉसिबल है सर, एक्सटेंड कर दिएगा सर। ठीक है, तो उसको हम कर देते हैं। ठीक है नेक्स्ट मंडे किए देते हैं उसको हम बढ़ा के। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मंडे जो है हम उसको एडिट कर देंगे। वो आपके पास मैसेज अगर ना भी आए तो भी वो डेट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट मंडे हो जाएगी। जी सर, वो वहाँ से हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगी। हाँ, वो डेट हम उसकी एडिट कर देंगे, मगर मैसेज आपके पास हो सकता है आ जाए ना, वो आप नेक्स्ट मंडे को उसको जमा कर जाएगी सर। वो डेट तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करने लगेगा कि नेक्स्ट मंडे। हाँ। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साहब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैंने इसमें अभी एक क्रिस्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसमें जो है आसपास की नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाती है। शायद आपने करके दिया है। हाँ, शायद आपने करके दिया है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है सर। तो मैं शुरू करूं सर? हाँ, आगे लड़के मेरे इनको एक प्रॉब्लम गियर के ऊपर और करा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो ये गियर वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम लोग बेल्ट की यूनिट शुरू कर देंगे इसके बाद। हाँ जी सर। इनकी क्लासेस वैसे कब तक हैं सर? ललित, क्लासेस कब तक है तुम लोग? ललित नहीं सर, पता नहीं है सर, क्लास का सर अभी कोई टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं है सर, लेकिन सर कोर्स कंप्लीट करना है उसके बाद ही सर सेकंड सेशन होगा। वैसे भी सर कोई टाइमिंग नहीं है शेड्यूल का कब तक क्लास लेंगे। अभी तो सेकंड सेशनल टेस्ट भी चलना है, होना है सर। अभी तो फर्स्ट हुआ है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद क्लासेस ऐसे रेगुलरली चलती है। 20 तारीख को वो है। जी सर। ठीक है सर, तो मैं जरा कराता हूँ शुरू। अच्छा, आप ये बताओ आप लोग कि चार्ट्स एंड टेबल हैं आपके पास? हेलो
हेलो अभी तो नहीं है। यार अभी क्यों नहीं है? मैंने तो आपको दिया था जब डिजाइन क्लास, उन चीजों को रखा करो अपने पास। डाउनलोड करके रख लिया करें, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट बार बार सिस्टम पे देखनी पड़ेगी वो। खैर, चलिए तो सर शुरू करूं मैं? हाँ ठीक है शुरू कीजिए आप। ललित कहाँ गया? अच्छा कासिम, हाँ ललित जी सर। हाँ जी क्लास के बाद अटेंडेंस लेनी है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छी बात है। ओके सर, अच्छा आई एम गोइंग टू प्रेजेंट मिस्टर लाल। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं। ओके हेलो हेलो यस सर। हेलो। तो स्क्रीन जी सर, आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही है। ओके, तो ये मैंने आपको ये शेयर कर दिया है ना मैंने आपको। हेलो सर यस सर, कर दिया। सर आवाज आ रही ठीक, तो एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन ये मैंने शेयर कर दिया है आपको। इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, द कंसेप्ट इज दैट द बेसिक एग्मा बेंडिंग इक्वेशन का जो है स्ट्रेस फार्मूला, ये इसका जो बैकबोन और लेवी इक्वेशन है, बस उसमें थोड़े फैक्टर और ऐड कर दिए गए हैं। उसका नाम एग्मा यानी अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उन्होंने ये बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन लिखी है। द लेविस इक्वेशन इज नो लॉन्गर यूज्ड in its original form, but it is serves as the basis for the more modern version as defined by the EGMA. The principle of Lewis equations are still valid, but it has been augmented with additional factors to account for failure mechanism. The Lewis form factor y has been supplemented by a new factor called geometry factor j। y को हमने रिप्लेस किया है j से, geometry factor called geometry factor। तो एग्मा बेंडिंग इक्वेशन इज गिवन एज, ये आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेस आइदर इन पिनियन और गियर। पिनियन में होगा तो सफिक्स पी लग जाएगा, गियर में होगा तो सफिक्स जी लग जाएगा। तो सिग्मा भी वैसे अमूमन पिनियन और गियर के केस में पिनियन इज मोर चांसेस टू फेलियर ऑफ पिनियन, तो हम पिनियन की को ज्यादा सेव करते हैं, उसमें स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होती है। ओके, तो यार फॉर्मूला इज दिस WT into K, these are the factor, यहां से लेके यहां तक ये फैक्टर है। तो WT into K, KM, KS, KB, KI whole divided by F, M, J, KB। इसमें अब जो डिफरेंट टर्म है, WT is your tangential load। लेविस इक्वेशन में आपने इसको PT कहा था, टेंजेंशियल लोड। टीटी कहिए या डब्ल्यूटी कहिए, क्योंकि जो इक्वेशन है वो डब्ल्यूटी की फॉर्म है, तो दिस इज नथिंग इज टेंजेंशियल लोड, आइदर इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय पीटी और डब्ल्यू। सो डब्ल्यूटी इज इक्वल टू पीटी मींस टेंजेंशियल लोड। एफ इज योर फेस विड्थ ऑफ द टूथ, गियर की जो फेस विड्थ है वो बी ली जाएगी, बी। एफ कहिए या बी कहिए, बात एक ही है। फेस विड्थ
F इक्वल टू V इक्वल टू फेस वेक्टर। अदर फैक्टर्स, ये दो तो आपके ज्योमेट्री मतलब गियर टूथ के डायमीटर, टेंजेंशियल लोड एंड M is your module. Other factors are ज्योमेट्री फैक्टर J, मैं भी चार्ट दिखलाऊंगा आप उसमें। तो ज्योमेट्री फैक्टर्स of a pinion or gear will depend upon the set of the gear, कि पिनियन और गियर में कितने नंबर ऑफ टीथ है उसके ऊपर ये ज्योमेट्री फैक्टर डिपेंड करता है। दिस मे बी सीन फ्रॉम फिगर 3 and can be seen from figure 3. It depends upon the number of teeth on pinion and gear. ठीक है, बताएंगे कैसे लेंगे। दूसरा है एप्लीकेशन फैक्टर के ए, दिस विल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पावर सोर्स एंड ड्रिवन मशीन। जो आप पावर सप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर से कर रहे हैं या आईसी इंजन से कर रहे हैं या स्टीम इंजन से कर रहे हैं या कोई और सोर्स है, तो उसके लिहाज से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पावर सोर्स क्या है। दूसरा, जो मशीन ड्राइव कर रहे हैं आप वो कौन सी है, वो वुड कटिंग मशीन है, प्लेट मशीन है, मिलिंग मशीन है, या क्रैशर है, या आपका एक्सपेलर है, या आटा चक्की है, ये आपके ड्रिवन मशीन है। तो दोनों के बेसिस पर हम ये एप्लीकेशन फैक्टर डिसाइड करेंगे, दैट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 5। ओके, हेलो 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 जी सर। अच्छा, ये मुझे लगता है ये मैंने ये फिगर दे दी है आपको, नहीं तो अभी देखते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के एम, दैट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 4। किन की चीजों को डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द एफ बाई डी एंड फेज विड्थ डिवाइड बाय सर्किल डायमीटर ऑफ द गियर और पिनियन, एफ बाई डी रेशियो एंड फेज विड्थ। एफ बाई डी रेशियो और अगेन फेज विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, साइज फैक्टर के एस डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूल, टेबल 6 डिपेंड अपॉन द मॉड्यूल ऑफ द गियर। नंबर 5, रिम थिकनेस फैक्टर के बी, फिगर 5। रिम थिकनेस फैक्टर मतलब ये है कि अगर स्मॉल साइज का गियर या पिनियन है तो हम करते क्या है कि एक सॉलिड प्लेट लेके उसकी पेरीफेरी पर टीस काट देते हैं, ठीक है, अगर छोटा गियर है। अगर गियर बड़ा है, लार्जर साइज है, तो इतनी मोटी प्लेट और इतनी बड़ी प्लेट लेना तो अननेसेसरी की बात। तो करेंगे क्या, एक रिम बनाएंगे, रिम के ऊपर टीस काटेंगे और फिर हब होगा, हब से और रिम को आप वेब के थ्रू जोड़ देंगे, वेब और स्पोक के थ्रू। ओके, तो जो अगर लार्जर साइज का गियर है तो उसकी पेरीफेरी पर रिम के ऊपर आप टीस काटते हैं और उनको स्पोक के जरिए हब से जोड़ते हैं। ओके, तो उस वक्त अगर आपका रिम की पेरीफेरी पर टीस कटे हुए हैं तो तब रिम थिकनेस फैक्टर के भी लिया जाएगा। अगर सॉलिड प्लेट के ऊपर, सॉलिड ब्लैंक के ऊपर आपका टीथ कटे हुए हैं तो उस वक्त के भी विल बी टेकन एज 1। स्मॉलर गियर्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड स्टील प्लेट एंड टीथ आर कट ऑन द पेरीफेरी फॉर विच के बी इक्वल टू 1, तब सीधा 1 ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, व्हेन गियर्स आर लार्ज देन rim thickness factor is considered and can be obtained from figure 5. Okay, then idler factor ki, this is very important। देखिए, 2 गियर का सेट है तो उनमें से एक पिनियन होगा और एक गियर होगा। तो हर गियर, अगर 2 गियर आपस में टच में, एक गियर है और एक पिनियन है, पिनियन से पावर आप दे रहे हैं गियर को, ठीक है, तो इनके बीच में कोई और चीज है, तो हर रिवोल्यूशन में एक टीथ एक बार गियर से इंगेज करें, यानी पिनियन का हर टीथ एक रिवोल्यूशन में एक बार गियर से टच करेगा। इसी लिहाज से गियर का हर टीथ एक रिवोल्यूशन में एक बार पिनियन के टीथ से इंगेज होगा, यानी इन ईच रिवोल्यूशन 1 टाइम इंगेजमेंट विल बी टेकिंग प्लेस। ओके,
अब मान लीजिए पिनियन और गियर के बीच में एक आइडल गियर पड़ा हुआ है, समझ रहे ना? तो आइडलर गियर का फंक्शन क्या है? दैट विल रिसीव द टॉर्क और पावर फ्रॉम पिनियन एंड इट विल सप्लाई टू द गियर। यानी पिनियन से आइडलर में आएगी पावर, पावर पिनियन आइडलर के बाद में गियर में जाएगी। ऐसा होता है। ये यूज होता है या तो डायरेक्शन रिवर्ट करने के लिए या गैप को फिल करने के लिए आप आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन गियर जो पिनियन है उसकी टीथ का एंगेजमेंट देखिएगा कि जैसे वो दैट इज रिसीविंग द पावर फ्रॉम पिनियन, तो पिनियन के टीथ से आइडलर का टीथ इंगेज होगा तो मान लोडिंग होगी उसकी टीथ की। जब टीथ दो टच में होते हैं तो टेंजेंशियल लोड आएगा पीटी। ओके, और उसके बाद में इंगेजमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वही टीथ घूम के गियर से टच होता है तो वहां जाके फिर लोडिंग होगी। यानी हर रिवोल्यूशन में आइडलर का टीथ दो बार लोड होगा, एक बार पिनियन से टच होते वक्त और दूसरी बार गियर से टच होते। और याद रखें दोनों में जो टेंजेंशियल लोड होगा वो रिवर्ट होगा, रिवर्स होगा। एक में मान लीजिए अगर वो पावर रिसीव कर रहा है तो टेंजेंशियल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वही जाके उससे गियर से टच होगा तो जब पावर वो देगा तो उस वक्त उसका जो लोडिंग की डायरेक्शन उलट जाएगी। ओके, तो रिवर्स लोडिंग हो जाएगी। ओके, इसमें एक तरफ जिस डायरेक्शन लोड लग रहा है जब गियर से टच होगा तो जाके उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और हर साइकिल में हर रिवोल्यूशन में दो बार टूल्स लोड होगा, दो बार लोडिंग होगी। लिहाजा आइडलर को डिजाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लोडिंग हर रिवोल्यूशन में दो बार होती है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि पिनियन और गियर में एक बार ही हो। तो अगर कोई गियर आपका आइडलर की तरह काम कर रहा है तो तब KI factor will come into the picture and that value will be taken as constant 1.44. ठीक है, तो आइडलर फैक्टर KI will be taken as 1.44 if a gear is works as a idler, as an idler. और अगर नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं KI equal to 1 लिया जाएगा। अगर पिनियन है और गियर है तो उनके लिए तो आइडलर फैक्टर 1 लिया जाएगा। अगर कोई आइडलर बीच में लगा हुआ है तो उसके लिए आइडलर फैक्टर KI 1.4 लिया जाएगा। ओके, हेलो, डू यू गेट द पॉइंट? जी सर, जी सर। चलो, अब और भी फैक्टर है। डायनेमिक फैक्टर KV डिपेंड्स अपॉन द पिच लाइन वेलोसिटी V by dn upon 60 and quality factor KV QV. Quality factor will depend upon the type of machining which tools बनाए गए हैं, वो किस प्रोसेस से बनाए गए हैं, हॉबिंग से, मिलिंग से वगैरह वगैरह से, उसके लिहाज से उसकी सरफेस के ऊपर ये क्वालिटी फैक्टर QV डिफाइन होता है। लेकिन 5, 6, 7, 8 कुछ होता है तो एक QV आप डिसाइड करेंगे और पिच लाइन वेलोसिटी के बेसिस पर ये डायनेमिक लोड फैक्टर फिगर 6 से हम देख सकते हैं। Quality number QV see from table on page 3 depends upon pitch line velocity. Now bending stress number of the pinion or gear may be calculated as, जैसे पिनियन के लिए रहे तो सिग्मा T टेंसाइल स्ट्रेस वाला लेंगे। हालांकि सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, बट वी विल टेक केयर ओनली टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल पार्ट ऑफ द बेंडिंग। तो सिग्मा T और P मैंने लगा दिया पिनियन के लिए। सिग्मा TP इक्वल टू सिग्मा B और पिनियन मल्टीप्लाई बाय जो फॉर्मूला एग्मा फॉर्मूले से निकाला KR अपॉन KL, दो फैक्टर हैं, ये रिलायबिलिटी फैक्टर और ये लोड साइकिल फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, नाउ इक्वेशन 8, द अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस नंबर कैन बी डिटरमाइंड एंड देन material with heat treatment is selected from the table. इसमें जो KR है, KR is the reliability factor that can be seen from table 8 कि 90% रिलायबिलिटी चाहिए, 95 चाहिए, 99 चाहिए, किस टाइप से रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए उसके लिहाज से टेबल 8 से हम KR फैक्टर देख सकते हैं। दूसरा लोड साइकिल फैक्टर KL that may be seen from table 7.
ठीक है। देन इनिशियल एस्टिमेट और सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। यहाँ जो इसमें कैलकुलेशन है, जो लैविस फॉर्म इक्वेशन से डायरेक्ट हम मॉड्यूल निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें एकमा बेंडिंग इक्वेशन है, मॉड्यूल को हम सेलेक्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे इनिशियली। अब एज्यूम के लिए क्या कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए, तो उसका बेस ये है कि आप पावर कितनी ट्रांसमिट करना चाहते हैं और पिनियन के आरपीएम कितने हैं, कितने आरपीएम और कितना पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन दोनों के बेसिस पर एक टेबल है फिगर 8, उसकी मदद से हम अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल का अंदाजा हो जाता है कि इसने मॉड्यूल का काम कर जाएगा। ठीक है, रफ आइडिया उसके बीच में लेके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कि क्योंकि एम की जरूरत है, डब्ल्यू टी डिवाइड बाई एम नीचे आता है ना, तो एम जरूरत पड़, जब तक एम नहीं होगा तो आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। ओके, तो हमें मॉड्यूल सपोज मालूम है, ये एज्यूम करके हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे एग्मा फॉर्मूले सिग्मा बी, और फिर ये सिग्मा टी पिनियन से सिग्मा बी आपने उस एग्मा फॉर्मूले से निकाला कि आर अपॉन के एल इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, निकालने के बाद ये सिग्मा टी पी स्ट्रेस नंबर निकाला, बेंडिंग स्ट्रेस नंबर निकाला, और इस स्ट्रेस नंबर से आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं एक टेबल की मदद, उसमें प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करेंगे विद हीट ट्रीटमेंट, ये टेबल है। ओके, चलिए एग्मा सरफेस स्ट्रेस फॉर्मूला, ये सरफेस स्ट्रेस दो मोड ऑफ फेलियर होते, तो टूथ फ्रैक्चर डिपेंडिंग फेलियर ऑफ द टूथ, और दूसरा फेलियर होता है सरफेस फेलियर ऑफ द टूथ। तो एग्मा सरफेस स्ट्रेस फॉर्मूला सिमिलर टू दैट है, लेकिन वो कुछ ऐसा है, बकिंघम इक्वेशन ऑफ सरफेस स्ट्रेस as the basis of Agma fitting resistance formula and given as sigma c, वहां तो sigma b था, या sigma c compressive stress equal to sigma c cp under root wt ca cm cf b d I cv। अब c नथिंग है, ये जो बेंडिंग इक्वेशन में तो वो k से रेफर किया, k a k m k s, b की जगह f लिया है, डी आई की जगह यहाँ वहां जे था, या आई है, या सी भी के भी, तो जहाँ सी के साथ समझिए के है, जो के ए के भी है, वही फैक्टर ये सी एम सी आई से रेफर किए गए। ठीक है, सीपी क्या है, इलास्टिक कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ पिनियन एंड गियर। दो गियर जो है वो कैसे, दोनों के मटेरियल सेम है अलग अलग है, उनके ऊपर ये इलास्टिक कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। यू कैन सी फ्रॉम द बुक, मतलब टेबल है आपके पास। डब्ल्यू क्या, टेंजेंशियल लोड, डी द डायमीटर ऑफ द पिनियन, आई इज द ज्योमेट्री फैक्टर, वहां जे से रेफर किया है, यहाँ इसको ज्योमेट्री फैक्टर आई से करके फ्रॉम फिगर 7 से देखेंगे। अदर फैक्टर सी ए इक्वल टू के, सी एम इक्वल टू के एम, सी आई इक्वल टू के आई, सी आर इक्वल टू के आर, सी एल इक्वल मे बी टेकन एज फ्रॉम टेबल 10। ओके, allowable contact stress number can be obtained, sigma c dash equal to sigma c into cr upon cl। वो kr upon kl लेते हैं थे, अब यहाँ cr upon cl लेंगे। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम के लिए चार्ट एंड टेबल चाहिए। रुक जाओ जरा, देखता हूँ वो कहाँ है यार, चार्ट एंड टेबल क्यों नहीं आ रहे, ये तो थी मैंने आपको, ये ना चार्ट एंड टेबल फॉर गियर डिजाइन। हेलो हेलो, यस सर, चार्ट एंड टेबल फॉर गियर डिजाइन, ये मैंने नहीं दिया आपको, मेरे पास दिया है, क्लासरूम में है? क्लासरूम में है यार, कैसी बात करते हो, मैंने दिया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसको भी खोल लेते हैं, ये रे डिजाइन ऑफ गियर। ओके,
ये इसमें अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस नंबर, अलाउबल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नंबर, ये रहा ना। इसमें मटेरियल दे रखे हैं ये उनके लिहाज से, ये थ्रू हार्ड एंड मटेरियल है, इस फिगर से भी निकाल सकते हैं। अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस नंबर फॉर स्टील गियर्स, हमें ये लेना है स्टील गियर्स में। उसके बाद में ये कुछ चार्ट हैं, ये ये मटेरियल है सारे। मटेरियल कैसे सिलेक्ट करें, ये केस हार्डेंड है, केस हार्डेंड अगर गियर गेटिंग से तो ये टेबल आप लेंगे, टेबल 2 लेंगे। टेबल 1 जो है ये आपकी थ्रू हार्डेंड के लिए, सारा का सारा हार्ड कर दिया गया है। टेबल 3 अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस नंबर फॉर आयरन एंड ब्रॉन्ज गियर्स, ये क्वालिटी नंबर है, क्वालिटी नंबर क्यू 1.5, 5 to 6, 5 to 6, 5 to 7, उमर 6 लेते हैं क्वालिटी नंबर। क्वालिटी नंबर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पर ये है, ठीक है। ये आपके क्वालिटी नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर आपका पिच लाइन वर्क मालूम है तो ये 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, इससे भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये फैक्टर है नंबर ऑफ टीथ ऑन, ओके कौन से डिसाइड कर रहे थे हम, ये कहाँ है यार, बंद हो गया था क्या, होना तो चाहिए यार कहीं। हेलो यस सर। चलो ये पे प्रॉब्लम देखिए, यहाँ जरूरत होगी चार्ट को निकाल लेंगे। यहाँ पे हेलो हेलो, आर यू हियरिंग मी? पेज नंबर 11 पर ये प्रॉब्लम दे रखी है। ए पेयर ऑफ स्पर गियर विद 20 डिग्री फुल डेप्थ is to be designed as a part of drive for a wood chopper machine to cut bulk wood for use in a paper industry. पेपर मिल में लकड़ी से कागज बनाया जाता है, तो लकड़ी को पहले चोप करना पड़ेगा और उसके बाद उसे लुब्जी की फॉर्म में करके तब आप उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो लिहाजा वुड कटर, वुड चोपर मशीन होनी चाहिए। तो मशीन यह है जो आपको ड्राइव करनी है, वुड चोपर मशीन है। टू cut पे द पावर सोर्स इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कुछ फैक्टर मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फैक्टर है ना। ये पावर सोर्स है और आपका मशीन टू बी ड्रिवन है। द पावर सोर्स इज इलेक्ट्रिक मोटर दैट रन्स एट 1800 RPM. द गियर मस्ट रोटेट बिटवीन 465 to 475 RPM. पिनियन की आरपीएम तो 1800 हो गए और जिससे गियर अटैच है वो 465 से 475 के बीच में रन करना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं दे रखा है। हमेशा जब दो गियर सेट आपस में मिलते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी रेशियो नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे मिलेगा। और क्योंकि नंबर ऑफ टीथ जो है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, इनको डिवाइड करके गियर रेशियो मिलता है। गियर रेशियो मगर 4 है, मान लीजिए 4 है या 4.5 है, ओके। तो अब लेकिन नंबर ऑफ टीथ तो उसी हिसाब से होंगे, है। नंबर ऑफ टीथ तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मजबूरी है कि मान लीजिए 18 आपने रखे, इसमें क्या नाम 80 नंबर ऑफ टीथ पिनियन में है और गियर रेशियो मान लीजिए 3 है। 3 टाइम्स आपको स्पीड रिड्यूस करनी है। तो
गियर पर जो नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए 18 से केवल 54 आते हैं। अगर 3.5 में मान लीजिए आपका गियर रेशियो कितने होंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कीजिएगा, बोलो बोलो 58। तो कभी कभी ऐसा आता है कि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं, फ्रैक्शन में आप नंबर ऑफ टीथ रख नहीं सकते, जितने वैसे रखते हैं, तो तब हम मजबूर होते हैं कि गियर के नंबर ऑफ टीथ एडजस्ट करें, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है वो नहीं मिलता। ओके, लिहाजा ये लिमिट दे रखी है कि 465 से 475 के बीच में आपका गियर रन करे तो हमारे पास बन जाए। ओके, मोटर के तो आरपीएम फिक्स है, पिनियन के आरपीएम 1800 आरपीएम है, लेकिन जो गियर में रन कर रहा है उसके आरपीएम 465 से 475 के बीच में रखते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, द गियर मस्ट ट्रांसमिट 2.5 किलोवाट, ये पावर आ गई। Correct design is required, compact design is required. Compact design is required, but in no case the center distance may not exceed 120 mm. ठीक है? Complete the design that would be safe against failure for a life cycle of 10⁸. Specify the module, number of teeth on pinion and gear, the pitch, diameter, face width, and finally the material with its required heat treatment. हाँ जी, हेलो हेलो, जी सर। जी सर। चलिए, आप जो गिवन पैरामीटर को देखिएगा, एनपी 1800 है, आरपीएम ऑफ पिनियन 1800, एनजी गियर के 465 से 473, एच मींस पावर 2.5 किलोवाट, 2.5 × पावर 3 वाट, सेंटर डिस्टेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120 mm, ये लिमिट है आपका। सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फिगर 8, सबसे पहले आप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। अब फिगर 8 देखो जरा, कहाँ है, कहीं मिल जाए तो। ये बड़ी प्रॉब्लम, पहले तो आ जाती थी यार। ये क्या है इधर, आप खुद खोल के देखें यार। विंडो नहीं खुल पाती, दो विंडो नहीं खुल पाती मेरा। सर दूसरे एप्लीकेशन से खोल लो साथ में, सर क्रोम से खोल लो ओपन विद करके। चलिए पहले मुझे वो देखना है मॉड्यूल कैसे राइट क्लिक करके। नहीं, चार्ट एंड टेबल कहाँ था देखने जरा, इसमें था ना। ये चार्ट एंड टेबल, फिगर 8 देखो, इन सबको छोड़ो अभी, पहले फिगर 8 चले जाओ, लास्ट वाली है सबसे, देखो ये सब टेबल दे रखी हैं। ये जो कर्व है मॉड्यूल 8 mm है, तो पिच सर्किल डायमीटर 200, वी आर एज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ टीथ 20 है, तो 20 200 2 SM पिच सर्किल डायमीटर ले लिया, तो उसके लिए ये आपने सेलेक्ट किया। इस कर्व पर आप ये नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है, देखो पावर ट्रांसमिट किलोवाट आपकी कितनी है, 0, 6, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4, 5, 6 किलोवाट। तो पहले तो डिसाइड करो आपकी कितनी है, कितनी पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं आप, बोलो। 2.5 किलोवाट।
2.5 के बाद तो ये यहाँ 1.5 ये 2 का ये है और यहाँ तो डी हो सकता है 2.5 है, ये वाली जो है 2.5 1.5 से ये 3 जो करीब करीब इस लाइन के करीब है। ये जो लाइन है इसके लिए आपका मॉड्यूल 1 है, ठीक है। पिसर की डायमीटर 25 mm है, ठीक है। तो डायमीटर आप 1 mm लीजिए तो पिसर की डायमीटर 25 mm, नंबर ऑफ टीथ 20 लिए है, ओके। और 24 पिच 25 mm। आप 1.5 ले सकते हो क्योंकि 1 तो बिल्कुल यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2.5 क्या होगा। ऊपर वाला जो है ये 2 mm के लिए है तो 2 mm मॉड्यूल 2 mm और ये यहाँ नीचे वाला 1 mm तो 1 और 2 mm के बीच में मॉड्यूल सपोज मैं 1.5 ले लूं क्योंकि आरपीएम देखो क्या है 1800 आरपीएम है। ये यहाँ लाओगे ऐसे और ये 2 किलोवाट करीब कहाँ आएगा 2.5 यहाँ आएगा, यहाँ देख रहे हैं ना यहाँ पड़ेगा। तो ये इस कर्व और इस कर्व के अप्रोक्सीमेटली बीच में है तो इसके लिए यहाँ 1 mm है, ऊपर के लिए आपका ये 2 mm। इन दोनों के बीच का मॉड्यूल अप्रोक्सीमेटली एज्यूम करें 1.5 ले सकते हैं, समझ रहे ना। हेलो सर मॉड्यूल तो 2 लेना है ना सर, एज्यूम ने 2 करा है। इसमें प्रॉब्लम में 2 लिया हुआ है जी सर। 2 भी ले सकते हैं, ये तो ऊपर से ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोग 2 से लेके करना, कुछ 1.5 से लेके करना क्योंकि पावर जो है ये 1.5 और 2.5 यहाँ है, ये गया ना, ये कर्व गया। और आरपीएम कहाँ है, आरपीएम की लाइन कौन सी है 1800, ये वाली है, ये गई ना ऊपर। तो कहाँ पड़ेगा पॉइंट जरा लोकेट करें तो करीब यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगा पॉइंट 2.5 यहाँ के करीब पड़ेगा, यहाँ ये लाइन है। अभी किसके नियर है, हालांकि 2 के करीब है, 1.5 से दूर हो गई ना तो ये 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं सेल्फ डिजाइन के लिए। जस्ट आइडिया है, नीचे या 1 है ऊपर 2 है तो सेफर साइड के लिए 2 mm ले लें। ओके हम कहाँ थे, यही आ गई है। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ फिगर 8 एज्यूम मॉड्यूल 2 mm। आप 1.5 भी लेके कर सकते हैं लेकिन देखना लास्ट में क्या फर्क पड़ेगा है। मैंने 2 mm लिया है, ओके। एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन ZP 20, ZP का ये नंबर ऑफ टीथ को Z से शो करेंगे तो पिनियन पे Z के मैंने 20 लिए हैं। डायमीटर ऑफ द पिनियन DP मॉड्यूल टाइम्स ऑफ ZP तो 2 मॉड्यूल 20 40 mm हो जाएगा। फिर गियर का जो आरपीएम है वो कितने हैं, मैं 465 से 475 है तो मैं 470 ले रहा हूँ, है ना। तो गियर रेशियो क्या हो गया, NP अपॉन NG मीन्स 1849 70 में 3.829 आ गया, समझ रहे। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर कितने हो गए, NG अपॉन NP इक्वल टू ZP अपॉन ZG। तो ZG निकाल सकते हैं, ZG इक्वल टू ZP मतलब NP डिवाइड बाय NG तो 20 मतलब 3.829 तो आप क्या आएगी 76.58 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। क्या ये ले सकते हैं आप, कितने ले सकते हो? नहीं सर। तो या तो 77 लेंगे या 76 लेंगे, ओके। और आपके पास ये रिलैक्सन है 465 से 475 बीच ले सकते, तो क्या पर जाएंगे, लेकिन जस्ट आइडिया ले। तो हमने क्या लिखा, से ZG आई हैव सिलेक्टेड एज 77, ठीक है। 76 भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायमीटर ऑफ द गियर मॉड्यूल टाइम्स ऑफ ZP, 2 मॉड्यूल लिया है, 70 नंबर ऑफ टीथ है तो 154 mm आ गया, ठीक है भाई।
अब जब दोनों गियर के डायमीटर आगे पिनियन गियर की जो आपस में करते हैं, तो इनसे आप सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। सबसे पहले सेंटर डिस्टेंस चेक कर लेंगे, जो हमारे लिमिट है उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। सेंटर डिस्टेंस dp प्लस dt डिवाइड बाय 2, diameter of the pinion plus diameter of the gear divided by 2 means 40 plus 150 divided by 2 means 97 mm. मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ओके, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? सेंटर डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 mm. दिया था ना स्टेटमेंट में। वी आर इन सेफ मोड। ओके, हेलो भाई, हेलो सर। तो सेंटर डिस्टेंस का क्राइटेरिया पूरा हो गया और आपके नंबर ऑफ T20 गियर पर आपकी जमीन मिलेगा मॉड्यूल 2 सेलेक्ट करने के बाद। सेंटर डिस्टेंस 97 है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप विच इज लेस देन 120 mm hence safe. Now using the relation of power transmission, अब हमें WT निकालना है। अब WT निकाले, टॉर्क पता है आपको, टॉर्क निकालेंगे T ओमेगा और टॉर्क होता है WT मल्टीप्लाई बाय dp बाय 2। पिनियन पे निकालने dp बाय 2 इंटू ओमेगा क्या था 2 पाई NP अपॉन 60। डायमीटर पिनियन निकले हैं तो RPM भी पिनियन निकले। इन सबको सब्स्टिट्यूट किया तो चेक करो इतना आता नहीं आता। 663.1 चेक इट। चेक करो कैलकुलेटर निकाल के सब लोग। न्यूमेरिकल को करा के ही छोड़ूंगा आज मैं। बोलिए। हेलो, हेलो, हारून, हारून इज हियर। हारून, हकीर, वो लड़की क्या नाम, आयशा क्या नाम है उसका? नो वन इज रेस्पॉन्डिंग। कौन बोले, कौन बोले बेटा? हेलो, हेलो सर। सर कौन सा बोल रहे हैं? नाम बताओ। कासिम सर। है कासिम। कासिम, अच्छा ठीक है सर, ओके। चलिए कासिम जरा ये देखो, हारून है, तौकीर है। जी सर, तौकीर तो है। सर तौकीर बोलो सही सर, आंसर सही है। WT। हारून सर रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? हारून भी है सर क्लास में। सर बोलो, आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बोल नहीं रहे हो, म्यूट करके बोले। आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है आवाज भाई? चलो सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। 663.14। ठीक है, ठीक है, एक डिजिट से काफी होता है। इतने न्यूटन आपका WT आ गया। अब एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है आपको फॉर पिनियन। पिनियन के लिए निकाली है। एज्यूमिंग B कहिए या F कहिए एक ही बात है। B इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द मॉड्यूल। 10 to 12 mm मॉड्यूल लेते ना, तो 10 into 2 20 mm आ गया। डिफरेंट फैक्टर्स KA इक्वल टू 1.5 टेबल 3 फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स एंड देखो फैक्टर देखें आप।
देखिए के मैंने 1.5 लिया है, के भी 1 है, के एम 1.15 है। अब ये बताओ के एम कैसे लिया है? के एस 1 टेबल 6 से आ जाएगा, के आई 1, अब वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट ए आइडलर। के एल 0.92 टेबल 7 से देख लेंगे, के आर 1। अब ये देखो ज्योमेट्री फैक्टर है वो देखना है, और के ये फैक्टर देख लेंगे आप, दिखाना पड़ेगा। के बी मींस रिम थिकनेस फैक्टर वी आर देंगे सॉलिड ब्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है। के एम कमर्शियली यूज्ड इनक्लोज्ड यूनिट फिगर 4। ज्योमेट्री फैक्टर कहाँ गया? के बी और ज्योमेट्री फैक्टर जेपी, ये चीज देखनी है इंपॉर्टेंट, बाकी तो उससे निकल जाएगा। चार्ट एंड टेबल देखने पड़ेंगे। आ गया चार्ट एंड टेबल, क्यों नहीं खुल रही है यार ये क्या है? देखो क्या देख रहे थे पहले, बोलो कौन सा देखना है? देखिए फैक्टर को चेक कर लें। के एस साइज फैक्टर मॉड्यूल लेस देन 5 है तो 1 लिया जाएगा। आपने तो 2 mm लिया है ना, तो के एस इक्वल टू 1। के एल साइज 10⁸ है ना, उसके लिए 0.92 आएगा के एल, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द के आर और सी आर रिलायबिलिटी फैक्टर 90% रिलायबिलिटी मान लीजिए तो 0.85 ले लें, लेकिन नहीं जी तो 90% कम से कम लीजिए तो 0.85 आ गया। कॉन्टेक्ट स्ट्रेस में सीएल की जरूरत पड़ेगी 10⁸ के लिए 0.88 है फायर। ये टेबल 9 बाद में देखेंगे, पहले देखिए ये है एप्लीकेशन फैक्टर के ए। सबसे पहला पावर सोर्स क्या है? यूनिफॉर्म है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है। ड्रिवन मशीन समझ आज्यूम कीजिएगा आपका जो लकड़ी काटने वाली मशीन है, बीच में लकड़ी सीधी है, बीच में कहीं नॉट आगे एकदम झटका लगेगा तो शॉक लगेगा उसको, तो मॉडरेट शॉक है। तो इसलिए मैंने पावर सोर्स यूनिफॉर्म एंड जो ड्रिवन मशीन है उसमें जो शॉक डेवलप मॉडरेट शॉक है, तो उसके लिए फैक्टर के आपका 1.5 सेलेक्ट किया है। देखना कितना था, के कितना लिया मैंने? बेहतर है आप अपनी ऊंची को खोले रखो, आप पास अगर है तो। अच्छा, और फैक्टर देखिए, यहाँ पिच लाइन वेलोसिटी निकाल लेंगे आप इसकी। यहाँ क्वालिटी फैक्टर मान लीजिए 6 ले लो आप, QV इक्वल टू 6, ये तरह 6 है, 5 है, 7 8 है, तो क्वालिटी फैक्टर 6 ले लें। और ये 2 दे रखी हैं आप, पिच लाइन वेलोसिटी नीचे वाली मीटर पर सेकंड में, ऊपर वाली फुट पर मिनट में। तो नीचे वाला लेना है, जो भी पिच लाइन वेलोसिटी आए 20-25 कितनी आए पिच लाइन वेलोसिटी? V इक्वल टू पाई dt NP/60 से निकाली नहीं होगी, उसको देख के आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है तो ऊपर आएंगे ये QV इक्वल टू पाई या QV इक्वल टू 6 वाला कर देखेंगे, यहाँ से लेंगे ऊपर आएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां भी पॉइंट होगा यहाँ आपका ये डायनेमिक फैक्टर CV या KV होगा। 0.6 हो, 0.8 हो, ये वेरी करता है पॉइंट। ओके, अब इंपॉर्टेंट टर्म है रिम थिकनेस फैक्टर, आपको लेना ही नहीं है, सिर्फ 1 ले लिए क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज कट ऑन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा फैक्टर है? KM। फेस विड्थ आपकी कितनी आई है? 10 m, 10 दूनी 20 mm है, तो फेस विड्थ ये mm में लेंगे
आप कौन सा लेना है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर Km आपको लेना है। F/D मीन V/D रेशियो क्या है? ये कुछ होगा 1 या 1.5, ये 0.5 जो भी है उसको लेंगे। गियर कौन सा है? कमर्शियली इनक्लोज गियर यूनिट लेंगे या ओपन गियरिंग है? गांव देहात में से गियरिंग होती ओपन होती है। अगर इनक्लोज है तो ये वाला टेबल लेंगे, और अगर प्रिसीजन है तो वो ये लेंगे, प्रिसीजन है तो ये लेंगे। तो बीच वाला अमूमन लीजिए। कमर्शियली इनक्लोज गियर यूनिट्स है। फेस विड्थ आपके पास है 22, 4, 6, 80 इंचेस है, और mm ऊपर है, ये mm ऊपर है। 100, 200, 300, 400, 500, 0 है ना। और F/D रेशियो है। तीनों ग्राफ में से कोई भी चलेगी, ये कॉरस्पॉन्डिंग की Km निकाल सकते। ओके, अब मेन चीज है ज्योमेट्री फैक्टर J की। जितने फैक्टर गियर और पिनियन के लिए सेम रहेगी, ज्योमेट्री फैक्टर सेम। अब मुझे बताइए, पिनियन के लिए ज्योमेट्री फैक्टर निकालना है, उसको J सफिक्स P से रेफर करें, JP। तो नंबर ऑफ टीथ पिनियन कितने एज्यूम किए आपने? बोलो, हेलो, नंबर ऑफ टीथ पिनियन पर कितने लिए हैं? चलेंगे क्या? हेलो, 20 हेलो, हाँ, कितने लिए हैं? 20। तो ये देखिएगा, जिस भी पिनियन के ऊपर निकालना है, जिस गियर पिनियन जिसके ऊपर निकाला है उसके नंबर ऑफ टी सिलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 20 है ये, और इससे अटैच कौन सा गियर है उसमें नंबर ऑफ टी क्या है? 77 इधर वर्टिकल एक्सिस पे आइए, ये 17, 25 देख रहे हैं आप। नंबर ऑफ टीज फॉर विच ज्योमेट्री फैक्टर इज रिक्वायर्ड। तो हमारा पिनियन की बात करें तो पिनियन पर नंबर ऑफ टी 20 है, और इससे अटैच जो गियर है, नंबर ऑफ टीज इन मैटिंग गियर मीन गियर है उसकी टीज आपके 70 है, 85 है, 50 है। तो 85 वाली लाइन ले लो, यानी 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन, ये वाला 5वीं लाइन ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। और इधर आपका 20 वाला आएगा, जहां भी पॉइंट आए उसके साथ ज्योमेट्री फैक्टर आ जाएगा। क्या समझे? बोलो, पिनियन के लिए ज्योमेट्री फैक्टर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लीजिए 20, जो इससे गियर अटैच है उसमें नंबर ऑफ टी कितने हैं? 77। ये तो ये लाइन जाएगी, और इधर देखिए कौन सा 70, 70 अप्रोक्सीमेट नियर 85 के बीच में, तो वो करवाएंगे, लेंगे इधर को, ये आ जाएगा। और जहां 20 वाली लाइन इसको कट करेगी वो पॉइंट ले लीजिए, और उसके लेफ्ट में चले जाइए, आपको ज्योमेट्री फैक्टर J फॉर पिनियन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स, गियर के लिए मान लीजिए ज्योमेट्री फैक्टर निकालना है आपको, पिनियन के लिए तो आ गया। अगर पिनियन गियर के लिए निकालना है तो गियर पर नंबर ऑफ टी कितने हैं? 77। तो यहां देखिए 80 के करीब है, 80 वाला आ जाइए। और इससे अटैच क्या है? पिनियन है, उसमें नंबर ऑफ टी क्या है? 20 है, तो 17 या 25 वाली लाइन ले आइएगा। यहाँ देख लें, यहाँ आ जाए दूसरी लाइन, और यहाँ से 80 वाली लाइन देख लीजिए, यहाँ कई वैल्यू आएगी, यानी कुछ ज्यादा आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आपका ज्योमेट्री फैक्टर आ जाएगा। तो पिनियन के लिए थोड़ी कम वैल्यू रहेगी, ज्योमेट्री और गियर के लिए ज्यादा रहेगी। यानी जिस के लिए निकालना है उसके नंबर ऑफ टीज पहले हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, पिनियन पे निकालना है तो पिनियन पे नंबर ऑफ टी हॉरिजॉन्टली लेंगे, और से अटैच गियर आप यहाँ लेंगे। इन दोनों का मैचिंग पॉइंट जो होगा उससे रिलेटेड आप ज्योमेट्री फैक्टर देख सकते हैं। ठीक है, चलो, दो पिनियन अडेंडम 1 ये
दो गियर हैं जनरली यूज फॉर 20 डिग्री टूल। ये आपका क्या है 20 डिग्री के लिए, और नीचे वाला शायद कुछ ज्यादा एंगल था ये, तो हमें ऊपर वाला लेना है, ये वाला इस वाले गियर से। पिछला इन वैल्यूज बेसिस पर आपका लीड नंबर शायद 6 आएगा। ठीक है, ओके, ये हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलो स्टेज नंबर सेलेक्ट निकालने बाद में। ओके, अब आप वहीं आ जाइए दोबारा जहां से आप ओके, ये फैक्टर मैंने बताई दी थी, आपने टेबल देख लिए। KS1 लिया क्योंकि मॉड्यूल आपका 5 mm से कम है। आइडलर फैक्टर 1 लिया, वी आर अज्यूमिंग दैट कि आइडलर गियर नहीं है, पिनियन आपका वो सॉलिड ब्लैंक के ऊपर गड़ा हुआ है। लोड साइड KL आपका 0.92 और KR1 assuming 90% reliability. ओके, KA 1.5, KB1, KM 1.15, F/D और B/D के रेशियो 0.5 आएगा। कमर्शियली इंक्लूड यूनिट के लिए आपका 1.15 आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर देख लिए। पिछला इन वेलोसिटी निकालो, पाई dp np/60 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि dp mm में लेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कितनी आती है जरा देखो, पिछला इन वेलोसिटी चेक करो। सर 3.768। वो कोई बात नहीं, 3.77। उसके लिए क्वालिटी वेक्टर चेक लिया मैंने फ्रॉम फिगर 6। KV 0.75 आएगा, QV 6 ले और आपका वेलोसिटी 3.774 के करीब ले लो। अप्रोक्सीमेटली आपका KV 0.75 आएगा। Now using एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला, पिनियन के लिए ज्योमेट्री फैक्टर 0.33 फ्रॉम फिगर C फॉर Z इक्वल टू 20, Z इक्वल टू 70। ठीक है, अब पिनियन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए। WT, K, KB, KM, KI के सारे फैक्टर रखते हैं, यू विल गेट दिस वैल्यू। देखो 115.5, check it. बोलो सब वैल्यू रख के बताएं मुझे। सब 115.54। ठीक है, ठीक है। एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 सही है। हम अपनी तरफ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ले रहे हैं, जो भी ले सकते थे आप। एज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस में बी। अब ये फॉर्मूला सिग्मा बी फॉर पिनियन आ गया, तो सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस फॉर पिनियन, सिग्मा बी जो वैल्यू आई 115 KR/KL इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसे निकाल के कितनी आई नंबर 189 MPa। Yes, 88.38। 188 सर 188.38 ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 189 MPa। ये नंबर राउंड ऑफ कर दें। इसके बेसिस पर मेटेरियल सेलेक्ट करना है। अच्छा, गियर के लिए क्या लगा रहे हैं? गियर में सारे फैक्टर सेम है, सिर्फ ये KR और ज्योमेट्री फैक्टर है वो चेंज होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली बताओ, अलग वो यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर गियर ओनली J विल चेंज, ZG 77, ZP 20, तो JG ज्योमेट्री फैक्टर फॉर गियर 0.41 आया है, उसके लिए 0.33, इसके लिए 0.41। तो डायरेक्ट गियर के लिए ये निकाल सकते सिग्मा टेंसाइल फॉर गियर को सिग्मा TP जो पिनियन के लिए आई है इनटू बाकी फैक्टर सब सेम है। जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां रख लें, ज्योमेट्री फैक्टर चेंज कर लें, या फिर ये लिखा है इसमें JP डिवाइड बाई JG, ये रख दें, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा पिनियन के। तो 188 है, JP आपका 0.33 है, ये आपका 0.41 है, तो मीन चीज कम आएगी। गियर में हमेशा स्ट्रेस कम आएगी, 152 MPa।
ठीक है, बोलो भाई। यस सर, यस सर, ठीक है, नहीं आ रही है। 152। चलो 152 एमपी। अब एग्मा कॉन्टेक्ट स्ट्रेस वाला भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल, इसका फॉर्मूला रखिएगा। तो यू विल गेट 802.5 एमपीए सिग्मा सी नंबर, ये सारे वैल्यू रख दें, ठीक है, अपने आप करके देखिएगा। ये सीपी तो 191 होता है, स्टील का गियर है, स्टील का पिनियन है, तो 191 नंबर है इसका। Hence, allowable contact stress number can be calculated as sigma c dash sigma c into cr upon cl। निकालेंगे तो 912 एमपी आएगा। अब आप कॉन्टेक्ट स्ट्रेस पिन के लिए इतनी होनी चाहिए और गियर के लिए होनी चाहिए। अब आप सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिग्मा टीपी 189 एमपीए एंड सिग्मा सी डैश 912 एमपी फ्रॉम नाइट्राइडेड AISI 4140 grade 1 material is chosen for pinion। निकालो टेबल फिर दोबारा, ये दो वैल्यू याद रखना। पिनियन के लिए 189 है और सिग्मा सी 912 है। निकालो दोबारा, चार्ट एंड टेबल निकालो। आपको अपने पास होना चाहिए था यार। देखो, अलाउबल स्ट्रेस नंबर केस हार्ड एंड स्टील गियर मटेरियल, इससे पहले ये आपका थ्रू हार्ड एंड का है, ये थ्रू हार्ड एंड देख रहे हैं ना। इसमें जो हार्डनेस नंबर तो हमारे पता नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं ग्रेन 1 मटेरियल 250 189 190 करिए 250 वाला सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसके साथ आएंगे कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, अलाउबल कॉन्टेक्ट स्ट्रेस 830 तक मिलती है, हमारी 912 है, देख रहे हैं ना। तो ये मटेरियल बेहतर नहीं है, 210 वाले में और कम हो जाएगी, ये 720 है, लिहाजा हम फिर केस हार्डेंड में जाएंगे। नेक्स्ट जो है केस हार्डेंड, यहाँ देखिएगा नाइट्राइड, देखो उसके करीब करीब कौन सी है, 230 है, तो ये ले सकते हैं 1100 MPa वाला, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत हार्ड करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा हार्डनेस उतना महंगा पड़ेगा। 1050, ये 250 है, 190 से ज्यादा है, तो मैंने कौन नहीं कहा है, नाइट्राइड AISI 4340 मटेरियल सिलेक्टेड फॉर विच ये अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस ग्रेड 1 प्रेफरेबल, ग्रेड 2 जरा महंगा पड़ता है, इसलिए 250 MPa उसका लिए सेफ रहेगा, और जो आपकी कॉन्टेक्ट है 1050 है, ये भी सेफ रहेगी ग्रेड 1। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन आई हैव सिलेक्टेड दिस मटेरियल नाइट्राइडेड AISI 4140। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ऊपर जाएंगे तो हार्डनेस नेसेसरी बढ़ रही है हमारी, हार्डनेस का जो केस हार्डेंट है ज्यादा हार्ड करेंगे ज्यादा महंगा पड़ता है वो। ठीक है, तो ग्रेड 1 में ये वाला हमारा काम चल जाता है। ड्यू टू दिस रीजन आई हैव सिलेक्टेड दिस, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है हमारी। देखो 912 MPa from nitride ASI 4140 grade 1 material is chosen for pinion. Same material is also selected for gear, for which sigma C dash 1100 MPa and sigma B 230 MPa। तो थोड़ा मटेरियल ले लो, सेम मटेरियल है, गियर के लिए थोड़ा कम ले लो, उसमें आपकी कम मिल जाएगी। सेम मटेरियल इज आल्सो सिलेक्टेड फॉर गियर, फॉर विच सिग्मा C dash 1100 MPa है और सिग्मा बी आपका 230 MPa। 1100 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में देख लेना। खैर, ये दूसरी प्रॉब्लम है, ये आपकी होमवर्क के लिए है, ये रिवर्स प्रॉब्लम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे, यानी इसमें
बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लीजिए, और बेंडिंग स्ट्रेस हो तो फिर मॉड्यूल निकाल लें, मॉड्यूल सेलेक्ट कर ले और फिर आप रिवर्स प्रॉब्लम करिएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में ये गियर का जो प्रॉब्लम है वो खत्म। ओके, घर में प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। मेरी तरफ से ये ओके है। कैन आई लीव नाउ? हाँ जी, यस सर। इसको जाके अभी कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, नाउ आई एम लीविंग। हेलो, मैं अब स्टॉप करूं मैं सर अभी? अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लीजिए बेटा। मैं तो इसको बंद कर रहा हूँ। बाइक तो बाहर खड़ी है। हेलो ललित, ललित, हेलो। हाँ जी सर। ललित अटेंडेंस ले लो भाई। हाँ सर, एक बार कासिम को बोल देता हूँ, मैं तेरा रास्ते में था। कासिम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना यार। कासिम, कासिम इज हियर। कासिम जी सर। ले लिया आपने अटेंडेंस? स्क्रीनशॉट ले लो। कासिम नहीं है सर यहाँ। है? हाँ, क्या करो? क्या करे बेटा? कासिम नहीं है, कासिम पता ना चले गए थे कासिम। तो जो भी है ले लो आप। तौकीर तुम ले लो या हारून है, आप ले लीजिए और ललित को शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बता देना मुझे। हेलो, आप सब लोग एक क्रिस्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, तो जो अनवांटेड नॉइज है आपकी माइक की और उसकी, ये नहीं आएंगी। देखा ना, आज क्लियर वॉइस कौन सा सॉफ्टवेयर है सर? क्रिस्प ये आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, देखिए क्रिस्प। स्पेशली फॉर हेडफोन के लिए होता है। अननेसेसरी जो वॉइस आती है ना, यही को आती है। आज नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। आप मेरी क्लियर वॉइस है? सर एकदम क्लियर। हाँ। चलो, मैं अब लीव करूं? यस सर, यस सर। ओके भाई, वालेकुम सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। सर चलो जाओ, छुट्टी हो गई। तुम पब्लिक खबर के इंजीनियर।